Hi all. Today your lesson is 7 from the book of Beehive. Lesson name is packing. Agar when you have to go outside, huh, then at first you do your work, that is the packing. आप वहीं पर भी जाते हो तो एट फर्स्ट आप क्या करते हो? पैकिंग. तो पैकिंग इज द प्रॉपरली इफ यू हैव नॉट डन. सपोज यू हैव टू गो थ्रू ट्रेन एंड फ्रॉम हियर टू बिहार. तो it is take 2 days near about. So 2 days on the train, you need so many things. Then you have to pack your things in proper way. Otherwise, when you want to search out your toothbrush and brush early in the morning next day, you cannot find it. You take out your towel, that is also not possible. So if you keep your things in proper way, when you travel, that time it is easy for you to traveling. When anything you need, you take out. You remember, I kept there in this bag. I kept this bag and snacks. In this bag, I kept my shoes, slipper. Because 2 days you in the train, you stay there, so you need slipper, night suit, bed sheet, whatever you need, breakfast, snacks, newspaper. You keep in each and every in proper way. That is called packing. तो इन दिस कहानी, दिस स्टोरी में क्या है? द पैकिंग जो राइटर जेरम के जेरम, ओके, जेरम के जेरम. तो इन दिस स्टोरी पैकिंग द ऑथर जेरम व्हाट वांट टू से, जे बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी वी शुड बी कीप आवर थिंग्स इन प्रॉपर वे. Suppose we have to go Delhi, so we need 1 day minimum, 1 day, 1.5 day. So when you have to go to the train, at first you need key and lock, because under the berth you have to keep your things. Okay, so you know need at first what you need at first. Keep your things. So what you need? Key and lock. After that you remove your shoes. So you need slipper also. So when you open your shoes, you should be keep inside. That's why you need one polythene bag. Because when you come down from the train and when you have to go to your point or complete your journey, that time you wear the shoes. Okay, so that is called the packing. You need toothbrush and brush early in the morning. You need newspaper or magazine at night. Okay, so each and everything when you have to do, then it is easy for you. So you have to keep in before journey, you keep your things in proper way. That is called the packing. In the journey, there will be no confusion in where you have to keep your things. So otherwise you have to face so many difficulties if you are not keeping your things in proper way. Okay, suppose you have to go from the school to Udaipur for 3 days. So at night in the bus you need bed sheet or whatever you need. But when you have down from the bus, that time you need each and everything. Your bag is in proper way, yes or no. When you reach the hotel, that time at first you need your things. So whatever you have to go, whenever you have to go, whatever you need in the journey period, when you reach there you need to each and everything keep your. Suppose you have to come to the, don't go for journey, you have to come to the school. Today is Monday, so Sunday your duty you should be keep your, as per your timetable you keep your book at first. 7 subjects as per your timetable. 7 subjects are there, so 7 books you should be keep. 7 subjects notebook also there. If there is a one drawing period, so you keep your drawing things also.
create craft things also. Pen, pencil, sharpener, scale, whatever you need in the class, only tiffin box, because on next day your mother will give you, but others you should be keep your. Otherwise some students say, no madam, I not brought my homework notebook. No, why? You are a grow up student, so you should be keep before that day. That is also packing. It is not compulsory the journey time your packing is properly. When you are a student, when you have to come to the school, you should be keep your all things before one day, except water and tiffin. Okay, next day you should be keep your water and tiffin in the bag. Otherwise all things as per timetable, as per books, notebooks, craft things, whatever your suppose your PT period is there, so you need truck suit, to each and everything you should be keep in your bag before one day. That is also packing. So in this story there are 3 friends. अभी मैं आप लोग को हिंदी में इसकी स्टोरी समझा देती हूँ. हम लोग पहले ही बोल चुकी हूँ, जो पैकिंग होता है वो खाली बाहर जाने के लिए नहीं होता है. हम स्कूल में आने के पहले भी हम पैकिंग कर सकते हैं. आपकी फॉर्म, आपकी स्कूल यूनिफॉर्म, आपकी शूज़ ब्रश करके या करके सॉक्स, सब कुछ प्रॉपर वे आप यू शुड बी कीप एट नाइट. आप रात को ही सब कुछ आराम से रखोगे तो सुबह आपकी भागा दौड़ नहीं होगा. सुबह क्या होगा, आप ब्रश करोगे, तैयार होगे, टेक योर टिफिन बॉक्स फ्रॉम योर मदर एंड वाटर बॉटल, निकल जाओगे. ऑन टाइम यू हैव टू कम टू द स्कूल. ओके. 3 दोस्तों थे, जॉर्ज, हैरिस और जेरम. जेरम दैट मीन्स राइटर. ये लोग छुट्टी मिलाने के लिए कोई जाने का तैयारी किया था, जो हम लोग वहीं पर घूमने चलेंगे. लेकिन जेरम ने अपने पैकिंग के ऊपर बहुत गर्व था, जे मैं जैसा कोई पैकिंग कर ही नहीं सकता है. तो वो क्या करता है, पैकिंग का काम लिया गया. और बाकी जो था, बाकी को पसंद नहीं था, जे नहीं वो काम करना नहीं है, और बाकी दोनों बैठ के आराम करना था. अभी हैरिस ने क्या किया, उसने बूट जो था वो कोई बैग में रख दिया था. अपना जो शूज़ था वो कोई बैग में रख दिया था. रख देने के कारण जब बूट की बैग खुला गया तो उसको उसमें उसका जूता शूज़ नहीं मिला. वो बैग को बंद करके, मतलब बैग को बंद करने जा रहा था, तभी उसके मन में एक अप्रिय विचार आया कि अपना टूथब्रश पैक करना चाहिए था ना. तो टूथब्रश पैक किया. वो कहाँ गया, अभी सब चीज़ को टूथब्रश मिला नहीं. बूट रखने गया तो उसको टूथब्रश की याद आया. टूथब्रश क्या किया, पूरे सामान जो रखा था सबको उलट पलट कर दिया. अभी सब चीज़ों को उलट पलट देख के जॉर्ज और हैरिस को तो बार बार ये आ रहा है, मिल रहा था, लेकिन वो लोग कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसको सामान समेटना नहीं था. 18 टाइम हो गया, 18 टाइम्स, बट कुड नॉट फाइंड टूथब्रश. एक एक करके सामान नीचे फेंकते जा रहा है, 1 by 1. फिर फाउंड इन साइड बूट इन पैक्ड अप थिंग्स वंस मोर. तो फिर बूट के अंदर देखा तो बैग फाइनली क्या हुआ, रात को 10:05 में बैग तैयार हुआ. एक एक करके चीज़ों, तो जॉर्ज तथा हैरिस ने टोकरी को पैक करने लगे. अब टोकरी को पैक करने के टाइम जॉर्ज और हैरिस ने अपने हाथों में ले लिया था, जिस पर वर्णना करना अपनी सहमति दे दी. दोनों ने बड़े ही उत्साहपूर्वक पैकिंग शुरू कर दिया था. एक कार्य कैसे किया जाता था, तथापि वर्णनकर्ता को अनुसार हैरिस विश्व के सर्वाधिक बेकार पैकिंग करता था. मतलब इतने गंदे पैकिंग किया था जो बोला जाएगा विश्व में सबसे बेकार पैकिंग था. अभी एक काप तोड़ दिया, काप रखना था तो काप को तोड़ दिया. हैरिस क्या किया, स्ट्रॉबेरी को टमाटर के ऊपर रख के उसका भुर्ता बना दिया. स्ट्रॉबेरी का जो जैम का बोतल था वो उसके ऊपर रख दिया. मक्खन के ऊपर रख दिया, मक्खन के ऊपर पैर रख दिया. ऐसे करते करते पेस्ट्री नीचे रख दिया. उसके ऊपर भारी चीज़ रखा तो उसका तो भुर्ता बना जाएगा. पेस्ट्री लाया था खाने के लिए,
वो अलग से नाश्ता के बैग बनाना चाहिए था, जिसमें पेस्ट्री व मक्खन व जो भी चीज़ चाहिए, जिसमें शूज रखा उसी में पेस्ट्री रखा उसी में, तो ऑब्वियसली वो ख़राब होगा ही। ऐसी पेस्ट्री बहुत हल्की और ये चीज़ होती है, नरम चीज़ होती है। हाँ, फिर अंदर नहीं गया था अंदर उन्होंने क्या किया, खींच के एक कुर्सी लेके बैठ गया। हैरिस उसके मक्खन पे ऊपर जैसे ही रखा, हैरिस उसके ऊपर मक्खन रखा था, तो वो मक्खन जैसे ही रखा उसके ऊपर बैठा तो मक्खन में चिपक गया। अभी उसके पूरे घर को खंगाला, क्या कुछ भी नहीं मिल रहा है। जॉर्ज हैरिस के पीछे गया तथा उसे देखा, उतर कर चायदानी में रख दिया था। सब कुछ अस्त व्यस्त फिर से हो गया, जो वो लोग समेटे थे वो भी इधर उधर हो गया। अभी पालतू कुत्ता था मनमारी, वो भी क्या बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। वो आया और उसके चीज सामान पड़ा हुआ था उसके ऊपर बैठ गया। जो पैक किए जाने वाली थी उसने जैम पर अपने पैर रख दिया। उसे लगा कि हाँ, नींबू चूहे है। इसके पहले हैरिस उसे टोकरी से बाहर निकला, उसने टोकरी को कूद कर इनमें 3 नींबू निचोड़ डाला। हैरिस ने कहा कि वर्णनकर्ता ने कुत्ते को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया, बोला जी करो करो भाई करो। फिर वो लोग कितने बजे सोने गए, 12:50। जब समाप्त हुआ, निश्चय किया, हल्की तक लड़ाया तो 6:30 तब उठने का सोचा। 3 दोस्त थे, 3 दोस्त को सामान समेटने में लगना चाहिए था आधा घंटा से 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 आवर। वहीं पर रात को 12 बजे तक लगा। सोचो, तो फिर ये होता है कि अगर आपने पैकिंग सामान ठीक से नहीं किया, ये तो खाली पैकिंग करने के टाइम का है। अगर आप इसके बाद ट्रेन में चढ़े हो, आपको जो सामान चाहिए आप क्या करोगे, घर है तो ठीक है, इट्स ओके, स्प्रेड आउट करो। लेकिन आप ट्रेन में तो और इधर 3 सामने 2, तो 8 पैसेंजर होता है। 8 पैसेंजर अगर होते हैं और अगर आपने तीनों दोस्त मिल के सामान फैल के उसी सामान को ढूंढ रहे हो, एक निकलने, अरे ब्रेड है तो जैम कहाँ है, जैम के चलते पूरा सामान नीचे फेंका, तो बाकी जो है पब्लिक है वो लोग तो आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्या होगा, उसमें झगड़ा चालू हो जाएगा। तो व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर टू गो एनीवेयर, यू शुड बी पैक योर थिंग्स इन प्रॉपर वे। अपना सामान आराम से रख के तब निकलना, ठीक है। तो ये है हमारा आज की स्टोरी। चलो, इसमें मेन पॉइंट जो है, 3 फ्रेंड्स जॉर्ज, हैरिस एंड जेरम, ये लोग क्या किया था, डिसाइडेड टू गो ए जर्नी। जेरम टुक टास्क पैकिंग, जेरम टुक टास्क पैकिंग थिंग्स इनटू ए बैग। तो जॉर्ज एंड हैरिस ये लोग क्या किया था, जॉर्ज और हैरिस ने बोला एक पैकिंग के लिए बैग ला के दिया। तो जॉर्ज और हैरिस रिलैक्स होकर आराम से वो लोग इजी चेयर में बैठे हुए और इरिटेट कर रहा था उसको, बोल रहा था ये रखो वो रखो, जो बोलते हैं ना, जो काम करते नहीं है वो दूसरे को समझाते हैं, कराते हैं। तो वो लोग ऐसे ही बोल रहा था, ये करो वो करो वो करो, उसको ऐसा करके ऑर्डर दे रहा था। तो जो द नरेटर हैड टू ओपन द बैग टाइम अगेन एंड पैक द थिंग्स दैट ही फॉरगॉट टू पैक। अब बार बार वो करने के बाद क्या होता है, कोई इंसान अगर काम नहीं कर रहा है, साइड से बोल के बैठा ये करो वो करो, तो जो काम करना है तो वो क्या अपना पेशेंस खो देते हैं, अपने याददाश्त भूल जाते हैं, जब मैंने कहाँ रखा था। क्योंकि साइड में बैठ के अगर फ्रेंड आपको तंग कर रहा है, इट्स नॉट राइट वे। अगर अपने घर में सामान समेट रहे, उसके आपके उस टाइम बड़े भाई व बहन कुछ बोल रहे हैं, बड़े भाई बहन कुछ सामान समेट रहे, वो लोग बाहर टूर पे जा रहे, तो आप बैठ के बोलोगे इट्स नॉट राइट वे। डोंट इरिटेट टू हिम और हर, इफ पॉसिबल बाय यू ट्राई टू हेल्प देम। शूज़ ला के दे दो, बटन ला के दे दो, बोलो दीदी इसको ऐसे रखो, दीदी इसको पॉलीथीन में भर के रखो, तो देखो इट विल बी हेल्प टू योर सिस्टर एंड शी विल बी प्लीज टू यू, ठीक है। ही असाइन टू टेक द पैकिंग हैम्पर्स ऑफ जॉर्ज एंड हैरिस। They made a mess while packing the things. First of all, they broke a cup. Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it. टमाटर रखा था, उसके ऊपर एक बॉटल रख दिया जैम की
तो ऑब्वियसली टमाटर पिघल जाता है। ऐसा भी सब्जी लेने जाते हो तो सबसे ऊपर टमाटर रखता है, क्यों? टमाटर के ऊपर अगर आपने आलू व फूल गोभी व ऐसा कुछ सब्जी रख दिया, पत्ते गोभी रख दिया, तो ये क्या होता है, टमाटर पिघल जाता है। ऐसी बहुत हल्की फुल्की चीज़ है उसमें। तो जॉर्ज का क्या, जॉर्ज स्टॉप्ड ऑन द वाटर। दे ऑल्सो हैड ए डॉग नेम है मोंटमोरेंसी विच यूज द डिस्टर्ब अदर्स। वो दोनों तो कर ही रहा था, उसके साथ एक कुत्ता भी जो आया वो भी गया। दे वेंट टू बेड आफ्टर 12:50। रात को 1 बजे हम लोग सोने गया, 3 घंटा लग गया तीनों का सामान ये करने। जॉर्ज आस्क्ड देम व्हेन ही वुड वॉक अप देम अप। आफ्टर लिटिल आर्गुमेंट दे डिसाइड टू वॉक अप एट 6:30। सोचो, अगर आपके कहीं पर जाना है तो अर्ली इन द मॉर्निंग यू हैव टू वॉक अप। आप स्कूल आते हो तो कोई बच्चे देखोगे दौड़ के क्लास में आते हैं, मैडम सॉरी मैडम कैन आई कम। तो जो लेट हो जाता है ड्यू टू ही और शी इज़ नॉट प्लानिंग ईच एंड एवरीथिंग बिफोर मॉर्निंग। सुबह बिफोर व्हेन यू हैव टू गो टू बेड, बिफोर दैट यू शुड बी कीप योर ईच एंड एवरीथिंग इन प्रॉपर वे। देन इट इज़ पॉसिबल व्हेन यू wake up early in the morning, it is possible by you to come to the school on time। एक बात याद रखा, अगर पैकिंग आपका ठीक से आए तो सुबह उठ के आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे उसको, आप सुबह उठ के सिर्फ ब्रश करके चाय नाश्ता करके आपके स्कूल में आ जाओगे। तो ऑन टाइम आपकी जो भी आपका पर्टिकुलर होता है ना, ऑन टाइम पे होता है ना, वो कभी लेट नहीं होता है। जैसे आप लेट आओगे तो ऑब्वियसली आपकी पैकिंग नहीं हुआ, सुबह याद आया अरे आज तो इंग्लिश की नोटबुक जमा करने का डेट है, तो इंग्लिश की नोटबुक ढूंढने में आपने 3 मिनट लगा दिया। मम्मी ने बोला नाश्ता नहीं अभी टाइम नहीं है, फिर मम्मी बोला ज़बरदस्ती दो एक ब्रेड तो खा के जाओ, तो वो करने गया। फिर शूज़ रात को रखा नहीं था, एक इधर है तो सॉक्स का है, संडे था तो सॉक्स का है, वो ढूंढने में टाइम, तो ऑब्वियसली यू हैव टू कम टू द लेट। जब आप लेट आते हो आप बोलोगे मैडम मैं तो लेट आया तो क्या हुआ, मैं फ्रेंड से होमवर्क ले लूँ। लेकिन नॉट ओनली होमवर्क, टीचर्स एक्सप्लेन इन द क्लास, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अदर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन यू लाइक ए टीचर। जब एक टीचर समझाते हैं, सपोज योर फर्स्ट पीरियड इज मैथ्स, इफ यू आर नॉट कम टू द स्कूल, नॉट अटेंड द क्लास ऑन टाइम, लेट आते हो तो नीचे आपको खड़े रहने पड़ता है। तो वाई यू आर कमिंग लेट, लेट आप आते हो तो जिनका ड्यूटी है उनको तो ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा, नीचे आपको खड़े होने पड़ा। तो फर्स्ट पीरियड में जो मैथ्स आपको समझाया गया था, हाँ, तो यू लॉस्ट दैट टाइम, तो आपको गया पिघल ये। लेकिन आपके फ्रेंड से देख के आप खाली कॉपी डाउन किया, बट दे आर नॉट पॉसिबल, दे ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग टू यू। कोई ऐसा नहीं बोलेंगे जो नहीं अभी मैथ्स का क्लास है जाओ, नहीं। आप जब लेट आओगे तो लेट का पनिशमेंट तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा। तो आप क्लास में आते हो तो तब देखा टीचर आधा समझा दिया, तो आपने खाली बाजू वाले के देख के, आपके फ्रेंड के देख के कॉपी डाउन कर दिया। कॉपी डाउन करने से क्या होता है, आपको समझ में तो नहीं आया। अगर अंदर क्लास में ऐसा होता है तो फर्स्ट पीरियड में लेट होगा तो ऑब्वियसली सेकेंड पीरियड में तो आपका जब टीचर आए तब आप फर्स्ट पीरियड वाला ही मैथ्स लिखने में बिजी हो। तो पूरी वर्ल्ड का जो टाइम टेबल है ये भी डेली रूटीन थोड़ा आपका अस्त व्यस्त हो जाएगा। ओके, तो मैं कुछ इडियम्स और फ्रेज आज आप लोग को भेज दूंगी, तो आप लोग उसको कंप्लीट करोगे। जैसे नाउ एंड देन, इसको क्या बोला जाता है फ्रेज में, ऑकेशनली, ठीक है। पोटर अबाउट, डू रोम है, अनइम्पॉर्टेंट थिंग। फेल्ट इनटू, एक्सेप्टेड, फेल्ट इनटू एक्सेप्टेड। प्राइड ऑन सेल्फ ऑन, फील प्राउड ऑफ। ओके, तो ये आपको आज करनी है। ओके बेटा, तो सो यू हैव टू डू योर वर्क ऑन टाइम, गॉट इट। तो आपके जो है ये आज आप लोग, मैं PDF भेजूंगी तो आप इसको आज करना। ओके, सो बी केयरफुल, save at your home and do your work each and everything in your notebook. Any day school will be open, that time don't be hurry, आप उस टाइम जल्दीबाजी में मत रहो। डू योर वर्क इन प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर वे। आज आप डेली आप क्या करोगे, अपना काम करते जाओगे। तो अपना काम करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका धीरे धीरे
आपका काम निकल जाएगा। ओके बेटा, सो बी केयरफुल, अपना नोटबुक कंप्लीट, दैट इज़ योर ड्यूटी, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क ऑल्सो। हाँ, जो भी PDF जाए, ये नहीं जो PDF में तो है, तो PDF से आप नोटबुक में लिखोगे। ओके, एंड मैच द फॉलोइंग यू हैव टू डू बाय ओन सेल्फ। मैंने क्वेश्चन भेजूंगी, आप लोग मैच द फॉलोइंग में यू हैव टू डू बाय ओन सेल्फ। ओके, चलो, बी केयरफुल, बी सेफ, हैव ए नाइस डे, बाय।